to tell you. Okay, fine. So I hope everyone is clear that today we have to concentrate on retrieving data from OLAP server. और data हम लोग OLAP server से कैसे access करने वाले हैं? Okay, this is the theoretical part that given in that we have seen actually what is meant by OLAP, what is meant by schema diagram. There are two types, measures and dimensions. We have seen all these points. Okay, so we have cleared all these points. So I'm not going to concentrate on theoretical part. We just focusing on, you just zoom here. Let's say for example, how the data will extracted from it. So if there is one example given on particular databases. Okay, so how the databases will given, how the dimension value, there is a Excel OLAP pivot table display, measures in the data cell with corresponding dimension values in the rows and column. Means you can zoom from your side. आप लोग जूम करके देख सकते हो इसमें, क्योंकि इतना मैं यहाँ पे जूम नहीं कर पा रही हूँ. सो यू कैन डू दिस. इसके अंदर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा stored in rows and column format, and there is corresponding dimension values in the rows and headers into the columns. मतलब rows में हमेशा dimension store होंगे, जो हम लोग data different dimensions we have seen. Okay, that we have seen in fact table or dimension or schema diagram we have seen. Okay, so just see here one example of databases. You can zoom it and see, no problem. Okay, so after that we just focused on one by one diagram here. Okay, just concentrating on diagram table. Just here, let's say I'm going to show here second figure number 30.5. Okay, so my motto to behind this स्लाइड, इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, आपको क्या दिखाना है मुझे? इट शुड बी एन पीपीटी. पीपीटी मैंने शेयर नहीं की इसलिए वो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है. वेट फॉर सम टाइम, आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन में. ओके, सो पीपीटी में पहले शेयर करती हूँ सो दैट यू कैन इजीली क्लियर ऑल द पॉइंट्स. ओके, तो ये पीडीएफ है क्या पीपीटी में? ओके, इट्स इन पीपीटी, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू जूम इट. जूम करने से ही आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है. ओके, सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दैट. सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज जूम करो. आपका जो मोबाइल पे आप लोग, आई नो दैट कि एवरीवन एक्सेसिंग मोबाइल, नो वन इज एक्सेसिंग द लेक्चर वाया डेस्कटॉप. सो एवरीवन शुड स्टार्ट योर मोबाइल. ऑन मोबाइल एवरीवन अटेंडिंग द लेक्चर, बट यू हैव टू जूम इट. ओके, जूम करना है. जूम करने से ही आप लोगों को समझ में आएगा वो मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, सो आई होप एवरीवन इज एग्री. एक्चुअली इट इज अ प्रेजेंटेशन इज देयर, प्रेजेंटेशन ही है इसमें, बट मैं फिर से शेयर करती हूँ आपके साथ. बट आपको थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा. ओके, फ्रॉम माय साइड इट इज टू मच, smallest part is given. Okay, just if I'm zooming, it's not possible to zoom from my side, you have to do it. Okay, so just concentrating on that diagram, that is I'm reading the point that is creating an OLAP data source definition. Okay, what exactly it is? Just concentrating on this part, this figure is I'm going to show you. This is Microsoft provides the offline database drivers with Office 2003 to connect to SQL Server OLAP Cube. Okay, so इसमें जो database किसमें store किया है? तो SQL Server में data store किया है. And the first step in connecting to Cube is to define data source connection. Okay, so in background there is a some coding are there. So we just concentrating on which part that I'm going to highlight here. Just see this diagram, this figure 30.4. This is the same dialog box used to create a query with the query wizard. Okay, so here you can choose data source. So ये जो box बता रहा है, ये box में क्या है? There is data source you can select. Means like यहाँ पे आप लोग क्या क्या select कर सकते हो? आपका database जो आपने क्रिएट करके रखा है किसमें? SQL सर्वर में. उसमें से आप लोग क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, और ऊपर तीन ऑप्शन है, डेटाबेसेस, queries and OLAP cube. So via query you can access your data. So how it will going to access? We have to see this. Okay, so in first step, so first of all, after it is defined, you must define a data source connection for the OLAP. Yes, हमें पहले connection करना पड़ेगा. Then OLAP source you intend to use in Excel. So the following steps you have to do. The first step जो भी है वो क्या है? Choose a data, import external data, new database query to open the choose data source dialog box shown. Oh yes, so हमें क्या करना पड़ेगा? पहले
डेटा को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट इट, एंड सिलेक्ट करने के बाद हमें वो डेटा इंपोर्ट करना है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट हियर. ओके, सो ये टेबल सबको समझ में आया. यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली प्रैक्टिकली इट विल हैपन. आई एम ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग दैट हाउ प्रैक्टिकली इट विल हैपन. ओके, सो हमने थियोरेटिकली देखा ओलैप कैसे वर्क कर रहा है, ओएलटीपी कैसे वर्क कर रहा है, हाउ द डायमेंशन टेबल्स आर वर्क, एवरीथिंग वी हैव सीन. बट हाउ प्रैक्टिकली इट विल डू, that I'm going to show you here. Okay, so I hope it is clear. आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है एवरीवन? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से, हाउ द रिट्रीव द डेटा फ्रॉम ओलैप सर्वर, ये हम लोग देख रहे हैं. सो प्रैक्टिकली यू शुड नो हाउ इट इज पॉसिबल. ओके, सो एवरीवन शुड क्लियर ऑन दैट. ओके, सो सेकंड पॉइंट विल बी, सेकंड डायग्राम सब लोगों ने फोकस करना है. सेकंड स्टेप जो कि यहाँ पे आई होप इट इज रीडेबल टू एवरीवन, मोबाइल पे जूम करके देखो. सेकंड स्टेप है क्लिक द ओलैप क्यूब टैब. ओके, इसमें क्लिक करना है ओलैप क्यूब टैब. Select new data source, means what you have to select here, new data source in the list, and then click OK. Open the new dialog box, that is create a new data source, that is we have seen 30.5 this figure. Okay, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, OLAP data source, give your OLAP data source any name you want and then select which type of OLAP server you want to use. Yes, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, OLAP sales data, मतलब हम लोग जो बोलते हैं वी आर फोकसिंग ऑन, इफ आई वांट टू एनालाइज सेल्स डेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, व्हाट नेम डू यू वांट टू गिव योर डेटा सोर्स. सो मुझे कौन से डायमेंशन का एनालिसिस करना है. लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स डेटा, सेल्स में मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसका लोकेशन का एनालाइज करना है, या पर्टिकुलर टाइम के रिलेटेड मुझे एनालाइज करना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना सोल्ड हुआ है, उसका परचेसिंग का अकाउंट चेक करना है. सो एट दैट मींस व्हाट वी कैन एनालाइज द dimension wise data. This is I'm on to talk here. Okay, so everyone is clear. So first step is what, कौन सा डेटा सोर्स सिलेक्ट करना है, ये पहले इसमें समझ में आएगा. सेकेंड वन, सेकेंड थिंग इज सिलेक्ट एन OLAP प्रोवाइडर for the database you want to access. Yes, so second will be the OLAP provider, also important. Just see here in this box that I am highlighting here, that is Microsoft OLAP DB provided for OLAP server 8.0. So dear student, this is a questions asked in project presentation. तभी आपको क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सर्वर आप यूज कर रहे हो, so which backend you have done. So there are different servers are available. Then let's say Microsoft SQL server you have used, then OLAP server you have used. So this is just, you have to focus on what you can read it properly, I know that, but you should know how the data we can extract from OLAP server. Okay, so हमें OLAP server का डेटा सोर्स देना पड़ता है. उसके बाद डेटाबेस विच प्रोवाइडर यू वांट टू गिव द सर्विस, तो वो प्रोवाइडर भी सिलेक्ट करना पड़ता है. ओके, नाउ मूव फर्दर टू द थर्ड प्रोसेस, दैट इज type a name for your new data source. In the future you will select this name for the choose data source dialog box to connect to the data source. Yes, so हम लोगों ने already वो किया था. Next, select OLAP provided from the drop down list, जो हम लोगों ने अभी देखा. वही स्टेप्स वो क्या कर रहे हैं, आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, दैट इज OLAP provider to connect a Microsoft SQL server. जैसे यहाँ पे 2000 Microsoft SQL यूज किया है for OLAP Cube. Select Microsoft OLAP DB provider for OLAP services 8.0. Yes, जो मैंने अभी प्रोसेस बोली है यही वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं. So I hope everyone is clear. So we have to select which data source, which operation you want to analyze, means कौन से डायमेंशन पे आपको काम करना है वो सिलेक्ट करना पड़ता है. दूसरा, OLAP प्रोवाइडर कौन सा है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग कौन सा डेटा सोर्स एक्सेस कर रहे हैं. तीसरा, सर्वर का भी नाम हम लोगों को सिलेक्ट करना है. देन वी हैव टू क्लिक द कनेक्ट बटन हियर. जस्ट सी इन थर्ड टैब that we have to click the connect button to open the multi-dimensional connection dialog box. Okay, so जब हम लोग उस पे कनेक्ट करेंगे तब हमें क्या आएगा, मल्टी डायमेंशनल बॉक्स ओपन होगा. ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, दैट वी नीड टू एक्सेस इट. ओके, सो ये बताने का रीजन ये है कि कैसे हम लोग OLAP सर्वर से डेटा एक्सेस कर रहे हैं. ओके, सो अगेन देयर इज, दिस इज द फिगर 3.30.6. just everyone should concentrate. The analysis server option accesses cube in Microsoft SQL Server 2000. Yes, सर्वर कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, Microsoft SQL 2000.
the cube file option access offline cube store on your hard disk. Yes. So this is the concept of your data warehouses. मतलब जो डेटा क्यूब का जो डेटा क्यूब के फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर है, वी हैव टू एक्सेस दैट डेटा एंड वी कैन एक्सेसिंग इट इज इन ऑफलाइन एंड स्टोर इनटू द हार्ड डिस्क. मतलब वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, उसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसके लिए कौन सा मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद कौन सी विंडो आ रही, ये विंडो आ रही. तो ये विंडो में क्या दिया है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. Just it will use this wizard will help you to connect the multidimensional data source. Yes. Then choose the location of the multidimensional data source that you want to use. Yes. So कौन सा आप लोगों को location let's say analysis server use करना है या cube file check करना है. So depends upon you. You have to select from these two. Then you need to provide authentication information for HTTP connection everywhere it is required. That is user ID and password is required. You have to enter it, then click on next button. Okay. So likewise, we have to do these operations. Suppose if you want to click on analysis server radio button, then you have to type your server name, user ID and password here. Okay. So these operation that we need to perform. Okay. मतलब हम लोग ऑफलाइन भी डेटा क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस रिट्रीव करके हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं क्यूब का डेटा, और उसके बाद उसको ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके. सो आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस ऑपरेशन. Fine. So next one is what? Creating an OLAP pivot table. Okay. So what exactly the creating on OLAP pivot table that we have to focus on? Okay. So that we have seen how multidimensional cubic information हम dimensional wise हम लोग data कैसे ले सकते हैं. उसके बाद हम लोगों ने देखा है the part is how to access the drill down. मतलब drill down करना है, मतलब मुझे in descriptive way में मुझे क्या करना है, डेटा का एनालिसिस करना है तो मैं कर सकती हूँ. इफ आई वांट टू यूज द पायोट टेबल, सो पायोट टेबल जो कंसेप्ट है, दिस इज कंसेप्ट कम्स अंडर इनटू डीबीएमएसएल. सो पायोट टेबल कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, उसके अलग अलग वर्जन है. सो आई विल व्हेन टाइम अलाउज अस देन आई विल टेल यू हाउ इट विल executable. Okay. So my question is that everyone should read the carefully all the points and just see in using a zoom in. Okay. Zoom करके देखो तो ही आपको वो properly clear समझेगा, क्योंकि from my side it's not possible to do the zoom. Okay, because it already starting the presentation. Okay. So pivot table अभी हम लोगों ने सीखा है. pivot table मतलब क्या है, to retrieve the data from OLAP cube, how to use a pivot table इन योर एक्सेल वर्क. ओके. एक्सेल शीट में ही पाइवट टेबल यूज किया जाता है. पाइवट टेबल का मीनिंग है वी आर रोटेटिंग द एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस. मतलब हम हमारा जो डायमेंशन, जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का व्यू है, हम लोग रोटेट करते हैं. सो रोटेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. ओके. सो इसके लिए नीचे देखो, चूज अ डेटा पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट रिपोर्ट टू स्टार्ट द पाइवट टेबल. पाइवट टेबल से हम लोग कैसे डेटा एक्सेस करने वाले हैं, और पाइवट टेबल ये कंसेप्ट सिर्फ एक्सेल में यूज किया जाता है. ओके. सो वो कैसे होता है हम लोगों को देखना. ओके. तो जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग द डायग्राम फिगर दैट इज 30.7 पे सब लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना है. तो यहाँ पे देखो अभी. सो ओलैप डेटा एक्सेस स्टार्ट विथ पाइवट टेबल. ओके. सो पाइवट टेबल मुझे देना है. तो फर्स्ट आई नीड टू सिलेक्ट हियर वेयर इज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज. ओके. डेटा कहाँ से एनालाइज करना है, उसको क्या करो, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है. दैट इज एक्सटर्नल डेटा सोर्स. If it is already available, then no problem in your hard disk. But it is external data source you have to select. Then we have to click on what kind of report you want to create. That is, you have to click on pivot table. Okay, so pivot table means it's rotating into x to y. Just see this diagram. What you have gained from it. यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपका क्या है, डेटा स्टोर्ड है लेट्स से, या हार्ड डिस्क की आपकी, उसमें से आप लोग डेटा रिट्रीव कर रहे हो, और डेटा रिट्रीव करते हुए उसका क्या कर रहे हैं आप लोग, डायमेंशन रिवर्स कर रहे हो. इफ इट इज एक्स एक्सिस में डेटा होगा, वो वाई में जाएगा, वाई का एक्स में जाएगा. लाइकवाइज वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके. और पाइवट टेबल अभी के जो आप लोग स्प्रेडशीट देखोगे, सो स्प्रेडशीट में आप लोग देखोगे तो वहां पे ऑलरेडी पाइवट टेबल का कंसेप्ट है. ओके. जस्ट आई एम शोइंग वन एग्जांपल हियर. जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर एवरीवन. सो जस्ट आई एम शोइंग हाउ इट विल वर्क. ओके. यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ. लेट्स से मैं यहाँ पे एक टैब ओपन कर रही हूँ मेरा. सो यू शुड नो पाइवट टेबल हाउ इट इज यूज्ड एंड ऑल. ओके. दिस आई एम स्टार्टिंग हियर. Okay, so just here let's say I'm is it visible everyone?
मैम। ओके, सो पायोट टेबल का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों को देखना है. इफ आई एम क्लिकिंग हियर in my blog, if we are accessing the one tab that is my responsibility, in which staff achievement data, okay, then I'm accessing that data. Because pivot table this concept work on excel sheet में होगा, मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं. Okay, so it's a very wonderful concept. Instead of Excel, we are using Google spreadsheet here. Okay, so just see here. Let's say this is my data collection sheet, that is in which I'm accessing the data. Means every faculty should add their HTTP, FDP, workshop, seminar attended, journal publications. Okay, I'm creating these a different task, a different tab here. Okay, conferences, paper publication, expert talk deliver, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, दीज आई हैव मेड दिस. ओके, सो ये पूरा स्प्रेडशीट मैंने बनाया है. इसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन अभी फिलअप कर रहे हैं. ओके, सो एवरीवन इज पुटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन दैट. सो यहाँ पे पायोट टेबल का कंसेप्ट हम लोगों को देखना है. जस्ट आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन कॉमन. ओके, समरी. Okay, just see here. Here is just check it out. Everyone should concentrate here. The pivot table editor. Here is just one point is given. Means I can rotate my table here. So according to pivot table. So यहाँ पे आप लोगों को field दिखाई देंगे. Let's say I'm clicking here pivot table editor. Okay. So if I want to display, it is in ascending or descending. Okay. So just check it here. मैं pivot table मतलब क्या कर रही हूँ, मैं टेबल के वैल्यूज मुझे किस हिसाब से डिस्प्ले करने उस वे से मैं कर रही हूँ. ओके, सो अभी आप बोलेंगे मैडम ये वैल्यू यहाँ पे कैसे आई, ये कैसे हुआ, ये सब उसके पीछे क्वेरीज है, ऑलरेडी क्वेरी लिखे हैं वहां पे. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ. मैंने क्या किया, पहले ये अलग अलग टैब बनाए एक्सेल शीट के. जो भी फैकल्टी है, फैकल्टी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने लेट से एचटीटीपी एफडीपी अटेंड किया होगा तो वो डेटा यहाँ पे डालेंगे, जर्नल पब्लिकेशन किया होगा तो वो डेटा यहाँ पे डालेंगे. एवरी फील्ड, मतलब टोटल कितने फील्ड है, टोटल 14 फील्ड्स आर देयर, उसमें लोग डेटा भरते हैं. बट मुझे क्या करना है, सपोज हर जगह पे हमें क्या करना पड़ता है, डेटा देना पड़ता है कि अभी कितने टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज ने पब्लिकेशन किया, कितने टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी ने इस ईयर में पेपर प्रेजेंट किया, इधर एक्सपर्ट टॉक लिया. दिस डेटा एवरीवेयर दिस डेटा एक्सेसिबल. मीन्स हर कोई वो डेटा एक्सेस करना चाहता है, हमेशा ये फॉर्मेट्स आते हैं, उसमें डेटा भरना होता है. तो ये पायोट टेबल का यूज क्या हुआ, लेट से ये कॉमन में मैं जब गई हूँ, लेट से समरी में जाती हूँ. सो ये जो डेटा है, पहले इसमें मैं दिखाती हूँ, ये डेटा हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है. ओके, सो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये बाकी के शीट से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं. बट यहाँ पे देखो समरी में, लेट से ये पायोट टेबल से मैं क्या कर सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग डिसेंडिंग विच टाइप ऑफ, यहाँ पे काउंट भी आ रहे हैं, देखो एफडीपी अटेंडेड 1, एचटीटीपी वर्कशॉप अटेंडेड 1, नेशनल लेवल का है. सो एवरी इंफॉर्मेशन आई कैन समराइज ऑटोमेटिकली. ओके, सो ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दैट. उसके अंदर हम लोग क्या देख रहे थे, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट, पायोट टेबल हियर. ओके, सो यहाँ पे जब मैं जाती हूँ, मींस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी कैन शो द वैल्यू अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग. मतलब पायोट टेबल, ये देखो, जब वन डेटा फील्ड में जाओगे, यहाँ पे पायोट टेबल पे क्लिक करोगे, जिस एग्जिस्टिंग शीट मैंने बोला, यहाँ पे मैंने क्रिएट बोला. यहाँ पे वो शीट का नाम, डेटा रेंज मुझे देना पड़ेगा. लेट से मैंने डेटा रेंज दिया, अभी यहाँ पे तो डिस्प्ले हो रहा था, राइट. एक मिनट. सो यहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या देखा, वी कैन यूज दैट पायोट टेबल अकॉर्डिंग टू व्हाट, फॉर एग्जांपल शीट दिस, मतलब हमारा शीट कौन सा, ये शीट का नाम ये वाला हमें देना पड़ेगा, फ्रॉम समरी. इसके फॉर्मूलाज का बहुत बड़ा इशू हो जाता है वो. ठीक है, पायोट टेबल से हमें क्या समझ में आता है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं. मीन्स अकॉर्डिंग टू माय, मतलब मुझे जो लग रहा है नेशनल लेवल में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो व्यू मुझे देखना है, तो मैं उसको रोटेट कर सकती हूँ. तो ये जो बेनिफिट है वो किसका है, ये किसके थ्रू किया हम लोगों ने, पायोट टेबल थ्रू किया है. सो आई होप एवरीवन इज एग्री द यूज ऑफ पायोट टेबल हियर. यस, everyone is clear this. If you can use this concept using what,
आप इसमें भी कर सकते हो, किसमें, let's say if I want to use this, that is summary, if I'm looking here, this sheet, let's say I want to, this sheet I want to access, ये sheet का नाम मैं copy करती हूँ. So likewise, practically मैं क्यों दिखा रही हूँ, you should know how the data will extract. Okay, so यहाँ से मैंने suppose data access किया है from valid destination, कहाँ से कहाँ लेना है, let's say मैंने ये क्या से लिया, A10 to A13 colon 2, let's say next field जो है, next field कहाँ तक है हमारी, last table value, that is A of, let's say I'm talking about, कहाँ तक उसका कॉलम की वैल्यू वो हम लोग देखते हैं, दैट इज m. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस A3 to M9. Okay, I want to show it. It's clear. Okay, again it will give the same value here. Means likewise we can check the meaning of this is, yes, you can see here, that is number of rows columns we can add, or according to that I can change the value here. Okay, so मैं pivot table through मैंने जब open किया था यहाँ पे, ओके, सो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो वैल्यू है मुझे अकॉर्डिंग टू दैट, मुझे किस एक्स वाई मतलब सिर्फ नेशनल लेवल की वैल्यू चाहिए, इंटरनेशनल की वैल्यू चाहिए, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन चेंज द रोटेट माय डेटा. ओके, दैट्स व्हाई पाइवट टेबल इज रिक्वायर्ड. सो आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. इज इट क्लियर एवरीवन using this example? Anybody having some doubt? Clear? Yes, ma'am. Okay, thank you Yes, so ma'am. much. Okay, so likewise we are using pivot table concept here. Okay, so same how the data will access through it, that point I need to show here. Okay, so likewise we have seen the pivot table. Then the next point will be what, how the data we are going to accessing, that is from it how it will extract here. So वही point आगे display किए देखो. So data कौन किस view से आपको display करना है. So again we have to choose whether ये 30.9 diagram देखो, choose whether you want to your new OLAP pivot table to go into the own worksheet, or you have to click or create a new one, you can select it. Okay, so according to that you can use the pivot table here. Okay, so actually इसका हम लोग खुद से लाइव जब टाइम मिलेगा तब वो करके देखने वाले हैं. Okay, and here just see here diagram figure 30.8. यहाँ पे क्या है, empty pivot table contains drop areas for you to place fields from the OLAP data source. Yes, तो यहाँ से आप लोग वो जो टेबल है वो क्या कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप करके भी वो डेटा वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे देखो साइड में जो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट है उसको सिलेक्ट करके हम लोग डायरेक्टली टेबल को यहाँ से डेटाबेस से वो डेटा क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन यूज करके ले सकते हैं. ओके, सो लाइकवाइज वी कैन यूज. और किस वे से आपको पाइवट टेबल डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है. इफ यू वांट टू see if you analyze the data using pie chart, you can use pie chart. If you want to use another data in tabular format, you can use it. There is different format is given in this pivot table. Small table is given. So likewise we can retrieve the data from data cube server, data OLAP server, means your cube data structure, using pivot table. Okay, so likewise you can read it. It's very good presentation that given the author. It's very good that you can clear the how the practically data will stored. Okay, so likewise we can use how the drilling up and drill down, every information you can see here. Just see here figure number 30.11. Okay, so what is 30.11? Just concentrate on that. इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? You can add, you just see here in this diagram. I hope everyone is clear this point. Yes, here is you can add multiple dimensions here. Likewise we can import the data. Okay, so this point we can do easily. Fine, so everyone should understand that. Fine, so I hope everyone is agree using pivot table. Then next one we have to focus on, next point जो भी है, how drilling operation will do. So drilling मतलब क्या, anybody can tell me what is a drill down operation performed in OLAP. OLAP का जो operation है drill down, वो क्या होता है? Anybody can give me the answer of it? What is drill down? Yes,
Anybody from your side? What is meant by drill down? Drill down means what? You can expand your uh, drill down में क्या होगा? You have to expand your dimension. Let's say dimension आपकी quarter, let's say एक dimension है sales. I'm talking about the sales item. Okay, so sales जो dimension table है आपका, उसके अंदर let's say आपका जो time है, time किसने quarterly basis पे दिया है, तो उसको किसमें convert कर सकते हैं हम लोग? We can see the data using monthly. Okay, मतलब this is a description, hierarchical way the data is stored. Okay, so just concentrate here. क्या information दी देखो. You expand and collapse the level of detail in pivot table by drilling into the dimension hierarchies. Yes. So dimension hierarchies means just concentrate here in this table. यहाँ पे let's say particular एक dimension है. For example यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं. So just store cells. Okay. So store cells ये जो dimension है यहाँ पे क्लिक किया है और उसके अंदर मुझे क्या करना है, डिटेलिंग उस हर एक प्रोडक्ट का क्या करना है, चेक करना है. तो आई कैन चेक इट इजीली, मतलब इन डिटेल. इफ आई वांट टू सिलेक्ट जेंडर, मेल ने कितने लिया है, फीमेल, एवरी इंफॉर्मेशन आई कैन चेक इन डेप्थ. तो ये किससे होगा, मतलब वी आर एक्सपांडिंग अवर डायमेंशन. ओके, सो दिस इज ड्रिल डाउन इज. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, we can see it's very good thing that you after lecture you also analyze properly it, how exactly we are extracting the data from OLAP server. Okay, so I hope it is clear to everyone. Okay, so likewise we can see here, and the last one that I'm going to show here, this diagram, that is 30.13. Okay, so here just concentrate here. यहाँ पे थोड़ा जूम आपको करके देखना पड़ेगा तो ही क्लियर होगा. यहाँ पे देखो, क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो है ऑफ द शेडेड पाइवट टेबल, ये देखो, ये जो पाइवट टेबल है उसके अंदर जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पर क्लिक करने के बाद ओपन द 3 व्यू ऑफ डायमेंशंस ऑफ हायरार्ची वेयर यू कैन check of the individual dimension item you want to displayed in the pivot table. Yes, तो यहाँ पे नीचे आ रही है देखो, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर डायमेंशन को सिलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं. सो दिस इज अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट एक्चुअली. जब आप लोग कभी प्रैक्टिकली वर्क करोगे उसमें तो आपको समझ में आएगा कि हाउ एक्चुअली इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन एक्चुअली डूइंग द वर्क ऑन दैट. बट वी आर ऑल्सो, वी शुड नो हाउ द डेटा विल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द OLAP सर्वर, कैसे उसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है, फिर कौन से डायमेंशन मैंने सिलेक्ट की, लेट से वही डिस्प्ले होना चाहिए. जैसे मैंने एक्सेल शीट में दिखाया था, लेट से मैंने STP FDP सिलेक्ट किया तो जो टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी है उनका पूरा डिस्प्ले आना चाहिए. जैसे मैंने एक्सपर्ट टॉप पे क्लिक किया तो वही डेटा आना चाहिए, बाकी का हाइड होना चाहिए. लाइकवाइज वी कैन एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम दिस. ओके, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर द कंसेप्ट ऑफ OLAP सर्वर, हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? किसी को भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो. ये PDF बहुत मैं शेयर करूंगी सबके साथ. एवरीवन शुड रीड इट केयरफुली. ओके, सो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर हाउ टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम OLAP सर्वर. यस, तो अभी आपको इतने पता होने चाहिए कि OLAP सर्वर कौन से है, अभी मार्केट में कौन सा यूज होता है. सो किस टाइप की क्वेरी हमें लिखने पड़ेगी so that we are accessing that data, and how to create the pivot table and how to use it. अभी स्प्रेडशीट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका यूज कैसे करना है वो समझना चाहिए. पर्टिकुलर डायमेंशन को ही हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग दैट pivot table. Okay, so likewise you should know everything. Okay, so I hope everyone is clear. किसी को कुछ डाउट है, ये आप लोग जितना डेप्थ में पढ़ोगे उतना, it's not possible to complete in 40 minutes, but you should understand how exactly it will work. Okay, so at least आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकली उस पर फोकस किया कि वो क्या हो रहा है, तो हमें समझ में आएगा जो हम लोगों ने OLAP सर्वर की स्टडी की है अभी. ओके, सो आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. फाइन एवरीवन? एनी डाउट? किसी को डाउट है कैसे डेटा हम लोग फेच करते हैं? प्लीज गिव मी द एक्नॉलेजमेंट. So everyone is clear the concept? Yes, just my request to, okay, I request to everyone that just open. I hope everyone is accessing the Google slide और Google spreadsheet. सबको पता है? आप लोग एक्सेस कर रहे हो स्प्रेडशीट? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके, सो उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी पार्ट, दैट इज, मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ जो कि सब लोगों ने करना है। ये देखो, आप लोग जब स्प्रेडशीट ओपन करते हो तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है एटलीस्ट वो देखो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो स्टाफ अचीवमेंट का किया है, ओके, सो अभी ये देखो, अभी मैंने ये सिलेक्शन प्रोसेस में किया, मतलब मुझे चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। सो आप लोग लाइव वर्क करके देखो, सो दैट इट्स मोर बेनिफिशियल। तो स्प्रेडशीट इट्स अ वेरी वंडरफुल कंसेप्ट। उसके अंदर हम लोग एक शीट से दूसरे शीट में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। देन मैंने देखो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज किया, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, सारे फैकल्टी के नाम डाल दिए, क्योंकि हर एक फैकल्टी को डेटा ऐड करना इट्स नॉट इजी टास्क कि हर टाइम मैं डेटा भरूंगी, इजंट इट। अभी मैं यहाँ पे हर टाइम मेरा नाम डालना है, ओके, सो हर टाइम क्या होगा, लोग अपने अपनी तरीके से डेटा डालेंगे उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक फॉर्मेट बनाया फिक्स, जिसको बोला जाता है डेटा वैलिडेशन। सो डेटा में जाके मैंने क्या किया, वैलिडेशन ऐड किया। तो वैलिडेशन में भी दो टाइप से, लिस्ट ऑफ आइटम ऐड कर सकते हैं और लिस्ट फ्रॉम रेंज आपको डालना है, नंबर डालना है, टेक्स्ट डालना है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सेलेक्ट। मैंने क्या किया, सारे फैकल्टी के नाम यहाँ पे डाल दिए, उसको सेव किया। तो ये मेरा क्या बन गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। उसको मैंने स्क्रॉल किया तो हर एक इसमें वो आ गया। इससे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ सकता है, मतलब सबका डेटा का फॉर्मेट सेम हो जाएगा। और इसके अंदर मुझे सिर्फ क्या लग करना पड़ेगा, मुझे फाइंड आउट करना है कि 2021 कितने लोगों ने एफडीपी अटेंड किया। तो मैं सिर्फ इस पे फॉर्मूला लगाऊंगी, एफडीपी अटेंडेड सिलेक्ट करूंगी पाइवट टेबल में, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एफडीपी पे ही क्या करेगा, सब डिस्प्ले कर देगा। लाइक वाइज यहाँ पे जैसे कॉमन शीट है हमारा, सॉरी समरी, समरी में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखो, अभी दिख रहा है सबको। यहाँ पे जो पाइवट टेबल है, इसके अंदर मुझे लग रहा है, देखो, असेंडिंग डिस्प्ले करना है तो असेंडिंग डिस्प्ले होगा। इज इट विजिबल एवरीवन? ये देखो, असेंडिंग वे में डिस्प्ले होगा। इफ आई वांट टू डिस्प्ले इन डिसेंडिंग, तो वो डिसेंडिंग में डिस्प्ले होगा। असेंडिंग मतलब क्या, असेंडिंग का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, एनीबडी कैन टेल मी, अकॉर्डिंग टू व्हाट, फैकल्टी नेम, मुझे फैकल्टी नेम से डिस्प्ले करना है या एकेडमिक ईयर से डिस्प्ले करना है। लेट से मैंने यहाँ पे you can display the data in any way, dear student. This is a very good thing that given the